A large number of fire aspirants जो है who want to do the financial independence and retire early path, उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है हाउ मच इज इनफ। हाउ मच इज इनफ ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, दिस हैज बीन आस्क्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर टाइम immemorial, but if you are a fire aspirant who want to become financially independent and retire very very early, he wants to ask one simple question, which is how much is enough to survive, how much is enough to live a happy life after you are stopped working for money. Not everybody wants to become financial retirement early. Most people want to become financially independent. So how much is that number? उसके पहले ये नंबर का अगर किसी को पूछा आपने कि कितना इनफ है, देन दे विल बिकम ऑल फिलोसॉफिकल, दे विल टेल यू सम बुलशिट लाइक नहीं नहीं पैसा तो कुछ काफी नहीं है, पैसे नहीं है, इंटरनल शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, मोह माया है, ऐसे फालतू जवाब देंगे। और कुछ लोग ऐसे नंबर बताएंगे कि आपकी आंखें क्या बोलते हैं, यू विल बी सरप्राइज कि ये क्या नंबर है भाई, 20 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, ये सब नंबर आपको सुनने को मिलेंगे। Uh, लेकिन truth is somewhere in between. You don't need zero amount of money. You don't need enormous amount of money. You need reasonable amount of money to be have a reasonable happy life. So we are going to talk about how much is actually enough. लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है how much is actually you can earn. इनफ तो क्या कितना भी बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है, तुम कितना पैसे कमाने वाले हो। जिंदगी भर तुम काम भी करोगे तो कितने पैसे कमा लोगे, एट द एज ऑफ 45 कितने पैसे कमाओगे। 45 is an important number, 45 age, because before that it's really really early to retire. अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, देन 55 कैन आल्सो बी रिटायर अर्ली, 3 साल पहले रिटायर हो गए, 3 4 5 साल पहले रिटायर हो गए। लेकिन फॉर somebody who is in a stressful jobs like IT, फाइनेंस, जहाँ पे टारगेट मीट करना है, जहाँ पे कस्टमर है, जहाँ पे वेंडर्स है, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज है, वहाँ पे 45 एज is what I call retire early. I wouldn't say retire early is a good thing. I am not a proponent of retire early. I think people should work. Unless people work, country will not progress. So I want people to work. But if you are motivated to retire early, then how much money you actually need, that's what we are going to talk about. But more than that, we are going to talk about how much is the number that you can actually reach in your working life, assuming a top career. We are not going to talk about somebody who earns 25,000 per month. उनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता. They are not going to earn enough money anytime soon. But people who are top notch, who have earned very good salaries in their lives, and at the age of 45 they think भाई बहुत हो गया, अब तो मेरे से होता नहीं काम, ये बॉस मेरे को तकलीफ देता है, ये कस्टमर मुझे तकलीफ देता है, मेरा तो मन ही नहीं जॉब करने का, मैंने तो और कुछ करना था जिंदगी में, ये गलत प्रोफेशन में आ गया हूं मैं, आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, बट आई गेट वेरी गुड सैलरी टू। सो छोड़ना भी मुश्किल है, करना भी मुश्किल है। तो ऐसे लोगों के लिए 45 एज इज अ टाइम व्हेन यू कैन रिटायर, you can try doing something else. Even if you fail in that, you are still okay. So how much is enough is the number, that answer has already been provided by somebody at Trinity organization in 1992. They say 25 times your current yearly expenses are good enough to retire. मतलब अगर आपका खर्चा 1 लाख रुपए पर ईयर है और आपने 25 लाख रुपए कमा लिए, then you can call yourself retire early. 25 times of your monthly expense, yearly expenses is the number. अब इंडिया में तो ये मानते नहीं। इंडिया के फाइनेंशियल एडवाइजर्स को आप पूछोगे इज इट इनफ, वो बोलेंगे नहीं 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 बॉस, वो तो यूएस का डेटा है, यूएस में तो सालों से डेटा, स्टॉक मार्केट का डेटा अवेलेबल है, इंडिया में तो है ही नहीं डेटा, तो इंडिया में तो आप हो नहीं सकते। I disagree with that. India is an emerging economy. India is where US was 50 years ago. So yes, India has got a bright future. And given the sheer number of working age people, Indian economy is going to grow. And so even if you are 25 times of your yearly expenses, not income, yearly expenses, you are good to retire. Will that be a great life where you go
you kind of vacation abroad every year or twice a year. No, it is enough for you to live a middle class life. घर का खाना खाओ और ज्यादा घूमो मत, डोमेस्टिक वैकेशंस करो, स्टिल यू कैन लिव वेरी गुड लाइफ। ठीक है ना? सो वी आर गोना लुक एट दैट numbers today, and actually what we are going to do, first thing first is आपकी औकात क्या है, आप कितना कमा सकते हो इस जॉब में रह के। We are going to look at what would can be the maximum amount for anybody, and what would be the median, and what would be the average. We are going to look at those numbers quickly, and we are going to determine from that whether you are ready for retirement or not. So ये जो बंदा है, very top notch guy, आज उसका एज 45 है। इन 2024 ही इज 45 ईयर्स ऑफ एज। इन 2000 ही वाज 22 ईयर्स ऑफ एज। ग्रेजुएशन कर लिया अच्छे कॉलेज से, 3 लाख का सैलरी पैकेज मिला उस समय। अच्छा पैकेज होता था वो, 3 लाख रुपीज पर ईयर। ठीक है ना? तो दैट इज बेसिकली 25,000 पर मंथ, एंड इन 2000 दैट वाज नथिंग टू स्कॉफ एट। एंड ये बंदे ने अच्छा खासा सेविंग भी किया। उस वक्त इनकम टैक्स भी लगता था 3 लाख पे, जस्ट टू रिमाइंड यू। 3 लाख पे भी इनकम टैक्स लगता था। उस वक्त खर्चे भी थे, नया नया बंदा है, उसको खर्चे भी ज्यादा आते हैं। फिर भी दिस गाय सेव्ड 1/3 ऑफ हिज सैलरी, 33% ऑफ हिज ग्रोस सैलरी, नॉट द नेट सैलरी बट द ग्रोस सैलरी। इनकम टैक्स वगैरह के पहले की जो सैलरी उसमें से उसने 33% सेव कर लिया। मतलब नेट इनकम से उसने आधे से ज्यादा सेव कर लिया। तो उसका पहले साल कॉर्पस होगा 1 लाख रुपए, क्योंकि उसने 1 लाख रुपए सेव किया। नेक्स्ट ईयर दिस गाय इज टॉप नॉच गाय एज वी सेड, उसको सैलरी ग्रोथ मिली 16%। अब 16% आपको कम लगेंगी, लेकिन लाइफ में 16% मिलता है, कभी 30% मिलता है, कभी 5% मिलता है। ऑन एन एवरेज यू गेट 16% सैलरी हाइक। यू शुड गेट 16% सैलरी हाइक इफ यू आर अ टॉप नॉच गाय। Then your corpus, your saving will be also increase, will also increase by 16%. So saving will be 1.16 lakh. You would get some return on investment on last year's 1 lakh saving. We are assuming return on investment as 12.5%, which is very good returns, by the way. Uh, yes, in some of the years there will be 30% returns, some of the years there will be uh, negative returns. It is entirely possible if it is stock market. If you are investing in real estate, they are unpredictable, but still everything comes to around 12.5%. FD, real estate, or gold, और तुम्हारा म्यूचुअल फंड्स, ऑल दैट कम्स टू 12.5%। ठीक है? रिस्क इन्वेस्टमेंट, नॉन रिस्क इन्वेस्टमेंट सबको आप मिला जुला के कर लो, 12.5% is the average returns you should get over the period of time. Now the story keeps on going. Meanwhile, he would have bought a home, he would have paid EMI on that, he would have done lots of things. But at the age of 45, that is in 2024, we are assuming he is 45, 46 year old. His home is paid off, and his total net worth is going to be 6.24 CR. उसका आज का सैलरी देखिए आप, gross salary is above 1 CR. So he is not average guy by any standard. He is a top notch guy. 1 करोड़ सैलरी 45 मिलने वाले बहुत कम होते हैं। फिर भी उसका टोटल कॉर्पस रहेगा 6.24। अब आप बोलोगे तो ये तो 0.1% लोग इतना सैलरी कमाते होंगे, तो क्या 0.1% लोगों के पास ही 6.24 है? नो, दैट इज नॉट करेक्ट। In reality, what happens, lots of companies give RSUs, ESOPs, some people have might got opportunity to work abroad, उसमें उसने 1-2 करोड़ कमा लिए होंगे। फिर कुछ कुछ लोग डबल इनकम वाले भी है। एट द एज ऑफ 45 वालों में डबल इनकम की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन काफी लोग वो भी रहेंगे डबल इनकम वाले। तो ऑन एन एवरेज 10 to 20% people would have that kind of corpus. 10 to 25% would have that kind of corpus. इसमें इनहेरिटेंस भी इंक्लूडेड है। अब ये मत सोचो कि 10 करोड़ का इनहेरिटेंस आ जाएगा, नहीं आएगा। इंडिया इज अ पुअर कंट्री, इट हैज ऑलवेज बीन अ पुअर कंट्री। इनके पेरेंट्स मिडिल क्लास पेरेंट्स रहेंगे, उनके पास क्या रहेगा, एक घर रहेगा अपना, और 45 ईयर से तो उसको एक और भाई भी रहेगा या सिस्टर रहेंगी, तो स्प्लिट होके इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा आएगा नहीं। तो ओवरऑल इनहेरिटेंस 1 आध करोड़ आ जाएगा, 1 आध करोड़ तुम बाहर जाके ये कर लोगे। तो ऐसे करके बहुत से लोगों के पास, 10 to 20% लोगों के पास 6.24 CR जमा होने की पॉसिबिलिटी है।
नॉट 0.1%। 0.1% वाले वही रहेंगे जिनको 1 करोड़ सैलरी है, और दे आर द सिंगल इनकम अर्नर, एंड दे हैव बीन कंसिस्टेंटली गेटिंग सैलरी हाइक्स, एंड दे आर कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग मनी इन गुड प्रोडक्ट्स। सो उनके पास 6.24 रहेंगे। बाकी लोग इनहेरिटेंस या फिर सम सम स्पोरेडिक real estate investments which give handsome returns, variety of reasons, double income, all those things, kind of dowry भी आ जाएगा किसी को। तो there are lots of things that can happen. So in all, 6.24 is the maximum money that 99% of 45 years age guys can have। 99.99 I would say, 0.01% लोगों के पास इससे भी ज्यादा रहेगा। बट दे आर, आई मीन, दुनिया में रिच लोगों की तो कमी नहीं है, लोगों के पास तो हजारों करोड़ है। तो लेकिन 6.24 और 6.6 CR इज द अमाउंट दैट यू कैन एस्पायर फॉर। ठीक है ना? एंड दैट विल बी फॉर 10 to 20% पीपल। लेट्स से 15% पीपल वुड हैव दैट काइंड ऑफ मनी एट द एज ऑफ 45। इससे ज्यादा आपका होगा नहीं। ठीक है? बाकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल रहेंगे, 50% लोग इस काइंड ऑफ डेमोग्राफिक्स में, उनके पास रहेंगे 3 CR total net worth। That includes your home, that includes your underwears, that includes your home lighting, everything included would be around 3 CR। 3 CR is the average guy's limit। टॉप नॉच गाइज की लिमिट, या फिर सम पीपल हु गेट लकी, उनका लिमिट है 6। एवरेज पर्सन का लिमिट है 3। इसमें कितने लोग आएंगे? 50% के ऊपर लोग इसमें आ जाएंगे 3 CR, जो बहुत अच्छा स्टार्ट किए, लेकिन इवेंचुअली दे एंड अप हैविंग व्हाट यू से 40-50 लाख का सैलरी रहेगा। वो लोगों के लिए 3 CR इज द लिमिट। उससे ऊपर आप कभी कमा नहीं सकोगे। इसलिए आप ये छोड़ दो कि मुझे रिटायर होने के लिए 50 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, ऐसी फालतू बातें मत करो। 3 करोड़ में आपको रिटायर होना है, एंड 3 करोड़ में आप बहुत बढ़िया रिटायर हो सकते हो। बहुत बढ़िया। आधे, एक तो आपको इनकम टैक्स रहेगा नहीं इफ यू स्प्लिट दैट मनी इनटू टू पार्ट्स, FD and mutual funds, and FD also is split into two parts between you and your wife, then income tax will be zero. Your job related expenses would have gone. You have no EMI to pay. Everything is paid for, and इसके लिए आप 3 CR में बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकते हो। We'll quickly look at what kind of monthly expenses you can expect। Here's the deal। I have done lots of calculations, and these are the real expenses। ठीक है? I have taken average amount, I have taken max amount। सो होम मेंटेनेंस जो रहते हैं ना, सोसाइटी में आपने फ्लैट लिया तो उसका मंथली मेंटेनेंस देना पड़ता है, तो आपका 6,000 और प्रॉपर्टी टैक्सेस तो बहुत कम है इंडिया में। यूएस जैसा तो है नहीं कि 1% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है। यहाँ पे तो 8-10 हज़ार प्रॉपर्टी टैक्स आता है, बहुत हो गया। अगर आप टॉप नॉच फ्लैट में रहते हो, बहुत बढ़िया घर है आपका, तो आपका 9,000 तक आ जाएगा। आज 5 रुपए स्क्वायर फुट से चल रहा हो monthly maintenance। So depending on how big your house is, you should be able to judge how much money you are going to spend on your house maintenance, maintenance and property taxes। इलेक्ट्रिसिटी, आरओ, अपने इंडिया में पानी का तो प्रॉब्लम है ही। अगर आप उसका एएमसी लेते होगे तो 3,000 तक आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी एंड एएमसी। नाउ सम पीपल हैव इलेक्ट्रिसिटी बिल इन 10,000। Those are the people who have large houses, ACs fitted everywhere, and that is not the retired life। ठीक है ना? Retired life, when we talk about retired life, we talk about a couple, two people, how much money they need। ठीक है ना? तो उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का इतना खर्चा आना तो मुश्किल है। कुछ भी कर लो आप, 3,000 के ऊपर जाएगा नहीं। ग्रोसरी 6,000। ये तो क्या, दाल आटे के भाव है, वो कोई ज्यादा नहीं है। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ईट द सेम थिंग, रिचेस्ट ऑफ द रिच ईट द सेम थिंग। घर में अगर रोटी बना रहे हो तो उसका रेट तो उतना ही आने वाला है, घर में अगर चावल बना रहे हो तो उसका रेट उतना ही आने वाला है। तो 6,000 में सब हो जाता है। ब्रॉडबैंड 1,200 रुपए का है मैक्सिमम। ओटीटी, अमेजोन प्राइम 1,500 रुपए साल का है। डिज्नी हॉटस्टार लोगे, नेटफ्लिक्स लोगे, अगर आप नेटफ्लिक्स लेते होंगे और दो चार लेते होंगे तो 600 रुपए तक जाएगा। मोबाइल रिचार्ज, आई एम एज्यूमिंग प्रीपेड। पोस्ट पेड लोगे तो भी उतना ही आएगा, प्रीपेड लोगे तो भी उतना आएगा। 600 रुपए दो लोगों के लिए, 300 रुपए पर पर्सन पर मंथ। मेड 2,000 से 5,000 तक। इफ यू गेट अ कुक, इफ यू गेट some extra help, it will 5,000 or 2,000।
पेट्रोल का खर्चा। नाउ रिमेंबर यू डोंट हैव अ जॉब, सो यू इट्स नॉट एज इफ यू आर गोइंग टू गो ऑल ओवर द प्लेस ऑल द टाइम, नो। 4,000 रुपए में आपको पेट्रोल आएगा, उसमें गाड़ी चलेंगी समझो 400 500 600 किलोमीटर, विच इज वेरी गुड मंथली। ठीक है ना। Eat outs 3,000 to 5,000. It depends whether you eat in a normal restaurant, average restaurant 3 times a month or in a 5 star restaurant twice a month. तो आपका उतना खर्चा आएगा। मिल्क के तो खैर ज़्यादा सोचना नहीं। वेजीज, वेजेस में मैंने 2,000 एवरेज में लिखा हुआ है, 5,000 मंथली है। 2,000 में आपको 1 किलो सब्जी रोज आएंगे। कितना सब्जी खाओगे आप? 5,000 बोल तो फिर जिनको ब्रोकली खाना है रोज, या फिर सम एक्सोटिक वेजिटेबल्स खाना है रोज, तो उनके लिए वो 5,000 तक जा सकता है। गिफ्ट्स अगेन, किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, उसमें छोटे मोटे गिफ्ट देने ही पड़ते हैं। इंडिया में सोशल लाइफ इज वेरी वाइब्रेंट, तो आपको तो बहुत जगह बुलावे आने ही वाले हैं। तो आपको 2 से 4,000 पर मंथ उसके लिए रखना है। हेल्थ के लिए, हेल्थ के चेकअप रहते हैं, विटामिन्स की दवाई, या ये फालतू के खर्चे करना ही पड़ता है। यू एंड अप डूइंग दैट। कभी ना कभी आप बीमार पड़ोगे ही, तो वो खर्चे होंगे ही महीने के। 2,000। कुकिंग गैस, ये तो खैर घर में खाना बना रहे हो तो 500 रुपये बहुत बढ़िया खर्चा है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000 से 10,000 तक आएंगे। कार मेंटेनेंस, अगर एक कार है तो 12,000 पर ईयर का आपका कार का, एक दीज आर द ईयरली एक्सपेंसेस। कार मेंटेनेंस 12,000, अगर सिंगल कार है, 2 कार है तो 24,000। कार का इंश्योरेंस अगेन, एक कार और 2 कार का फर्क है, 6,000 और 12,000। हेल्थ इंश्योरेंस 20,000 से 30,000 में आपको 2 लोगों का अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस आपने लेना ही चाहिए। उसका भी प्राइस ईयरली 15,000 से 22,000 है। वी आर टॉकिंग अबाउट 45 ईयर ओल्ड गाय। ओके, सो गाय हु इज 45 ईयर ओल्ड, तो उसका यूजुअली खर्चा 15,000 से 22,000 तक आपको हेल्थ टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। अल्कोहल, 5,000 का दारू पियोगे महीने का, तो 15,000 का पियोगे, दैट्स फॉर यू टू डिसाइड। गुड्स एट होम, 40,000 से 80,000 घर में खर्चे होते ही रहते हैं। छोटे मोटे खर्चे, मेंटेनेंस, घर का मेंटेनेंस करना है, कभी लाइट चले जाते हैं, तो कभी मतलब बल्ब बदलाने पड़ते हैं, तो कभी प्लम्बिंग का प्रॉब्लम आता है, ये सब खर्चे आते ही है। तो ईयरली 40 से 80,000 आपके उसमें खर्चा हो जाएंगे। वैकेशन, ईयरली 1 वीक वैकेशन शुड बी 1 लाख रुपीज फॉर 2 पीपल। अगर आप 2 वैकेशन लोगे तो 2 लाख होंगे। दिस इंक्लूड्स योर वेरी गुड अकोमोडेशन, 10,000 रुपये पर डे का अकोमोडेशन एंड फ्लाइट टिकट्स। क्लोथ, शूज, एक्सेसरीज, ये 50,000 से 80,000 तक। 50,000 के कपड़े खरीदने वाले लोग मुझे मिलते नहीं आजकल इस एज ग्रुप में। यू डोंट रियली नीड, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू वुड accumulated so many clothes that you wouldn't need to buy so more clothes anymore. बट स्टिल वी आर एज्यूमिंग 50,000। अगर आपके बीवी के साथ झगड़े होते होंगे तो आपके कपड़े ज्यादा फटेंगे, ज्यादा जूते फेंक के मारोगे एक को तो वो ज्यादा फटेंगे, लेकिन 50,000 इज गुड इनफ। दैट टर्न्स आउट टू बी average expenses. This is, when I say average, this basically means average for the guys who have 3 CR। ठीक है, तो उनके एक्सपेंसेस ईयरली 2,50,000 के करीब जाएंगे, या 5 लाख के करीब जाएंगे। एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 20,000 to 38,000 पर मंथ मंथली। एंड दैट काइंड ऑफ translates into 60,000 per month expenses, average expenses, very good life। फिर 99.42, that is 1 लाख रुपीज पर मंथ, which basically means इधर 7 लाख रुपए पर ईयर और 12 लाख रुपए पर ईयर। इसके बीच में आपके एक्सपेंसेस रहना चाहिए इफ यू आर टॉप गाय। नाउ रिमेंबर, वी आर नॉट इंक्लूडेड, व्हाट डू यू से, वी आर नॉट इंक्लूडेड योर किड्स एक्सपेंसेस इन हियर। दिस एज्यूमिंग किड्स के एक्सपेंसेस अलग से आपको रखना है। 20 लाख रुपए पर किड आपको तो रखना ही है। इंडिया में एजुकेशन अभी भी इतना महंगा नहीं है। 10 लाख में आप कौन से भी कॉलेज में जाके बहुत बढ़िया एजुकेशन ले सकते हो। 2,50,000 रुपीज पर ईयर एक्सपेंसेस बहुत बढ़िया एक्सपेंसेस हो गए हैं। मोस्ट ऑफ टाइम इट इज मच लेस देन दैट। अगर आप बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज में जाओगे तो 6 लाख रुपए पर ईयर एक्सपेंस है। 7 लाख रुपए पकड़ के चलो, 30 1 लाख में उसका एजुकेशन हो जाता है। तो वी हैव टू कीप दैट असाइड। वी नीड सेपरेट मनी फॉर दैट। एंड दैट्स हाउ वी हैव कम अप विथ दिस नंबर। सो घर का प्राइस कितना हो सकता है? 80 लाख टू 2.5 CR। इंटीरियर 20 लाख से 40 लाख। कार व्हीकल 10 लाख से 30 लाख। हाउस होल्ड गुड्स 10 लाख से 15 लाख। इसमें फ्रिज, टीवी, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, ऐसी चीजें इंक्लूडेड है। इन्वेस्टमेंट आपको करना है 1.75 CR। ठीक है, और जिनके पास ज्यादा पैसे वो करेंगे 3 CR इन्वेस्टमेंट। इमरजेंसी फंड्स आर गोइंग टू बी 20 लाख फॉर किड्स एजुकेशन।
50 lakh if you have two kids. So that turns out to be either 6.85 करोड़ का कॉर्पस चाहिए आपको, या फिर 3.15 का चाहिए। तो 3 लाख से 6-7 लाख तक, 3 लाख से 6 लाख करोड़ तक, 3 CR से 6 CR तक आपकी औकात उतनी है। आप उतने पैसे में जियो। और अगर आपका 3 CR भी है तो भी आप 7 लाख रुपए पर ईयर में जी सकते हो बहुत आराम से। किड्स के लिए थोड़ा आपको 20 लाख रुपए सेव करना है, इसी में है, इमरजेंसी फंड्स में। ठीक है। हाँ।